Good morning. Today we are going to study the second lesson of 7th class science, that is nutrition in animals. In the first lesson we have studied about the plants nutrition. Now let us study about the nutrition in animals. Nutrition is nothing but the food intake taken by an organism. Now we know that all the 5 groups of major nutrients of our food are carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals. Now we are going to study in this lesson how these food is converted or how that food is digested in our body. Now first of all we will study what is digestion. Digestion is nothing but conversion of complex substances into simpler substances. जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स. पर हमारी बॉडी उन सब्सटेंस को वैसे के वैसे ही डाइजेस्ट, वैसे के वैसे ही एब्सॉर्ब नहीं कर पाती. तो वो एब्सॉर्ब होने के लिए हमारे बॉडी में जो कन्वर्जन होता है, जो चेंजेस उस फूड में होना होता है, उसे कहते हैं डाइजेशन. That is called as a digestion. And in this lesson today we are going to study about digestion in animals. Now first of all the most and major important topic of this lesson is digestion in human beings. मतलब human being में digestion कैसे होता है. Now we know that the digestive system consists of the buccal cavity. After that buccal cavity is the esophagus, that is the food pipe. Just after the food pipe, stomach, then afterwards it goes to the small intestine, after the small intestine large intestine, then rectum and the anus. So this is the human digestive system of our body. Now the first thing, buccal cavity. The first and most important thing in the buccal cavity means our mouth. Our mouth consists of teeth as well as the tongue. The first digestion of the carbohydrates takes place in our mouth. You know, when you see a tamarind or a raw mango, what happens? Your mouth is filled up with water. That is nothing but the saliva. जो हम इमली या कच्चा आम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. तो वो पानी क्या होता है? वो पानी और कुछ नहीं, वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है उसका सिक्रीशन होता है और वो होता है सलाइवा. दैट इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. फर्स्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ माउथ. फॉर एग्जाम्पल, आप रोटी खा रहे हो, रोटी का टुकड़ा आपने तोड़ा है और वो रोटी आप मुंह में डालोगे. अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, वोमिट जैसा लग रहा है, तुरंत आप उसे बाहर निकाल देते हो. आपने जो रोटी डाली थी और जो आपने बाहर निकाली है उसमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आता है. वो डिफरेंस होता है कि वो जो मुंह में जो सलाइवा उसमें मिक्स हुआ है, उस सलाइवा से तुरंत उसमें फर्स्ट डाइजेशन शुरू हो जाता है. दैट इज सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड इट takes place, the first digestion takes place in our mouth. Now we will study it later. First we will study the teeth which is present in our buccal cavity. Now first the teeth. You know we have the 2 types of set teeth. That is, the first one is a temporary set and the second one is the permanent set. That is temporary teeth as well as permanent teeth. When the child is born, चाइल्ड डज नॉट हैव एनी टीथ इन द माउथ. उनके मुंह में, छोटे बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते हैं. 6 मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ में उन्हें 1, 2, 3, 4 दांत आने शुरू हो जाते हैं. बढ़ते बढ़ते 3-4 साल की उम्र तक उनके सारे दांत आ जाते हैं. और जब बच्चा यूकेजी, यूकेजी फर्स्ट में जाने लग जाता है, स्कूल में जाने लग जाता है, तब उसका एक एक दांत जो है वो टूटते जाता है. These teeth fell down and on that place the new set of teeth arises. और उसकी जगह पर दूसरा सेट आता है. और जो फर्स्ट टीथ जो होते हैं that is called as a milk teeth. उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ. दैट आर द टेम्पररी टीथ. मतलब वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं,
टूटने के बाद गिर जाते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड सेट आता है उसे कहते हैं परमानेंट टीथ। वो टीथ जो होते हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ होते हैं, हमारे बकल कैविटी में होते हैं। अगर परमानेंट टीथ टूट जाए तो हमें क्या करनी पड़ती है? वी हैव टू पुट द न्यू टीथ, दैट इज द आर्टिफिशियल teeth we have to put by the dentist. So these are the two sets of the teeth, and there are 32 number of teeth in the mouth of the adult, that is 16 on the upper jaw and 16 on the lower jaw. This set of teeth has 4 types of teeth: incisors, canines, molars, premolars and molars. When we cut a biscuit, जब आप बिस्किट खा रहे हो तो आप बिस्किट को सामने के दांत से खाते हो, that is you are using the first teeth, that is the incisors. Canines, जब आप गन्ना खा रहे हो, शुगर केन, when you tear up the sugar cane, you are using your incisors. आप उसका incisors से उसको काटते हो. So these are molars and premolars are used for chewing and grinding the food which you eat. Now the next after the teeth is the salivary glands. The glands which are present in our mouth which secretes the saliva, it helps in the digestion of the carbohydrates. One of the most important part, that is the tongue. The tongue is present in the mouth. हमारे बकल कैविटी में टंग होती है जो पीछे अटैच्ड होती है और आगे इट इज़ फ्री. इट इज़ हेल्पिंग अस टू स्पीक. वो हमें बोलने के लिए इस्तेमाल होती है. जनरली आप बोलोगे कि वी आर यूजिंग द टंग फॉर स्पीकिंग. यस, यू आर राइट. हम टंग से वी आर स्पीकिंग, हम उससे बोलने के लिए स्पीक का ज़्यादातर टंग का यूज़ होता है. बट you know the tongue is used for, the tongue is having the specific taste buds. टंग पर स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड्स होते हैं. ये टेस्ट बर्ड यानी क्या? ऐसे सेल्स हमारे टंग पर होते हैं जिससे हमें फूड के टेस्ट का पता चलता है. वो खट्टा है, मीठा है, चरखा है, कड़वा है, उसमें नमक ज़्यादा है. वी कैन आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड बाय द पर्टिकुलर बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग. द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टंग इज़ टू हेल्प इन स्वेलोइंग द फूड. फूड को स्वेलो करने में मतलब निगलने में, मुंह में से नीचे फूड पाइप में ढकेलने का काम, निगलने का काम, स्वेलो करने का काम करता है हमारा टंग. This is in the 3 organs in the buccal cavity. Now the esophagus. Esophagus is the small tube-like structure which joins the buccal cavity and the stomach. और उसमें contraction and relaxation होता है. और उस contraction और relaxation की वजह से जो हमारा खाना है वो नीचे जाता है. Means it help in pushing down the food, that is the contraction and relaxation. Contraction उसके जो muscles होते हैं उसमें contraction और relaxation होता है, उसकी वजह से जो खाना होता है वो अपने आप नीचे धकेला जाता है स्टमक में. Now the stomach is the wider, सबसे wider and J-shaped structure. J-shaped structure the stomach is, which is having 3 types of juices. That is, it contains mucus, it contains digestive juices, and because of these the internal lining of the stomach is having with the cells, and it helps, it produces hydrochloric acid. It has hydrochloric acid, it has some mucus as well as this hydrochloric acid which is present in the stomach. It helps to kill the foreign particles, that is the germs which enters in our body unknowingly. हमें पता नहीं रहता है कि कैसे हमारे बॉडी में जर्म्स चले जाते हैं. आप फॉर एग्जांपल, आप अगर कहीं से आ रहे हो, आपको किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया, आपने एक चिप्स उठा लिया, बिना हाथ धोए आपने ऐसे ही खा लिया, किसी ने आपको खिला दिया, तो कुछ जर्म्स पार्टिकल्स आपके बॉडी में चले जाते हैं.
तो ये जर्म्स पार्टिकल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता है वो उसे किल कर देता है. इट किल्स द जर्म्स इन द stomach. So in this way it is protecting these hydrochloric acid, it protects, it helps in digestion of the food material also. It contains some digestive juices, वो digestive juices भी secrete करता है which helps in digestion of the carbohydrates into simpler substances. कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर जो होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये डाइजेस्टिव जूसेस मदद करता है. देन आफ्टर दिस व्हेन द फूड इज पार्शियली और द फूड इज ग्राइंडेड इन द स्टमक. अब ये जो खाना होता है, हमारा खाना जो हम खा रहे होते हैं वो स्टमक में जाकर के पूरा जैसा मिक्सी में ग्राइंड होता है वैसा उसका कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में होता है. देन दिस food passes and there are some additional glands present in our body. The important one is the liver and pancreas. The liver secretes the bile juice. The liver secretes the bile juice and which is stored in the gallbladder and it helps in the digestion of the fats. मतलब हमारे बॉडी में लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है. बाइल जूस सिक्रेट करने के बाद गॉल ब्लैडर में उसे स्टोर किया जाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के बाद टाइम टू टाइम वो स्टमक में पोर होता है. उससे स्टमक में जो हमारे बॉडी में फैट्स होते हैं, खाने में जो फैट्स होते हैं उस फैट्स का ब्रेक डाउन करने के लिए मतलब कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. मतलब फूड डाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होते हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं. सो ये लीवर का जो बाइल जूस होता है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स. द पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस. Pancreas secrete pancreatic juice which helps in the digestion. Then afterwards this food is when this conversion now in this the food is partially digested. Most of all the food is broken down from complex substances into simpler substances. फिर वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर ये सारे अपने जूसेस जो है उसमें डाल करके उसका कंप्लीट कन्वर्जन मीन्स फुल कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है. एंड इन दैट द फूड इज एब्सॉर्ब. फूड का एब्सॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. एब्सॉर्प्शन मीन्स इन दिस द फूड द जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है फूड का, खाने का, वो सिंपल फॉर्म जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाने के लिए तैयार है. मतलब हमारा ब्लड जो हमने खाना खाया है वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से वो पूरे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचता है. मीन्स दैट इज कॉल्ड एज अ एब्सॉर्प्शन. देन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन भी होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में. एसिमिलेशन में क्या होता है, इट रीचेस टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स, स्टमक तो होता है वो स्टमक से जाएगा ब्रेन के पास, स्टमक से जाएगा लेग के पास, स्टमक से जाएगा हार्ट के पास. सो ईच एंड एवरी ऑर्गन दिस फूड इज provided, that is called as a assimilation. Then now what happens in the small intestine, there are small finger like projection. The lining of the small intestine has finger like small projection and it is called as a villi. It is called as a villi, and this villi it increases the area of absorption. वो area of absorption बढ़ाने का काम करता है. And for you should know that the length of the small intestine is about 7.5 meters. The length of small intestine is about
7.5 मीटर्स इन लेंथ, इतनी लंबी वो होती है। तो उसमें अगर विलाय होंगे तो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों तरफ, हर तरफ ये विलाय होते हैं। इससे एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन है वो more and more it increases the area of absorption. So the main function of the villi is to increase the area of absorption so that more and more food should be absorbed by the small intestine. ज़्यादा से ज़्यादा खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाए, इसलिए ये विलाय अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Then this is the digested food. This digested food is absorbed or assimilated to different organs. Now what happens to the undigested food? We eat a lot of food, but each and every part is not used up. So there is such part of the food which is undigested. हमारे खाने में हमने जो भी खाना खाया है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा खाना हमारा सिंपल फॉर्म में हो गया और पूरा खाना हमारे ब्लड्स ने यूज़ किया, नहीं, वो पूरा खाना हमारा ब्लड यूज़ नहीं करता है। तो कुछ जो हिस्सा होता है वो फूड का वो अनडाइजेस्टेड रहता है, मतलब वो हमारी बॉडी पचा नहीं पाती। जो पचा नहीं पाती उसका क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। दैट अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में इस अनडाइजेस्टेड फूड में से कुछ सॉल्ट और वाटर, जो ज़रूरी सॉल्ट और पानी होता है, उसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड अप बाय द बॉडी एंड द रिमेनिंग पार्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ टेम्पररीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। मतलब उस अनडाइजेस्टेड फूड में से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ वाटर पार्टिकल्स और कुछ सॉल्ट्स, वाटर एंड सॉल्ट इज एब्सॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द रेक्टम where it is temporarily stored for some time. And time to time this undigested food which is stored in the rectum is given out through the anus. That is the last end of our digestive system. That is, through anus this undigested food is passed out. So this digestive system consists of mostly 5 important steps. Ingestion means taking of the food material through the mouth. मतलब खाना जो हम खा रहे हैं उसे इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन मीन्स उसका पचना जो स्टमक में होता है। डाइजेशन इज द फूड इज डाइजेस्टेड, कन्वर्टेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू द सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन। ये डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में। एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इज टेकन प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्सॉर्प्शन मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल्स में सोखना और उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना, दैट इज एसिमिलेशन एंड एब्सॉर्प्शन इज डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वेयर एज इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो बॉडी में हम पचा नहीं पा रहे हैं ऐसे सब्सटेंसेस को निकालना बाहर, उसे कहते हैं इजेशन। नाउ these are the different steps in the digestion of the human being. Now let us study about the digestion in animals, that is mostly grass eating animals. Now grass eating animals are called as ruminants because they are eating up the grass. And you know, grass is having the most important part, that is the cellulose. ग्रास में सेल्यूलोज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे खाने में नहीं होता है, और वो जो न्यूट्रिएंट होता है सेल्यूलोज वो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता। इट कैनॉट बी एब्सॉर्ब और इट कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव जूसेस। सिंस दैट इज वाई द डिफरेंस इन बिटवीन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ruminants is that
they have a one extra organ that is called as a rumen. उनको ग्रास ईटिंग एनिमल्स में एक अलग सा ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है rumen. एंड दिस rumen इज हैविंग सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया. इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरिया उसके वो जो घास खा रहे हैं उसमें मिक्स होते हैं. एंड देन दैट बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग दैट सेल्यूलोज. एंड देन you might have seen the cow or a buffalo while eating the grass. आपने देखा होगा कि गाय या भैंस जो होती है वो अगर उसे कुछ घास खाने के लिए दी जाए या उसे कुछ खाने के लिए अनाज दिया जाए तो वो 5 मिनट में पूरा खा के ख़त्म कर देती है. उसे वो चबाते नहीं हैं, कुछ नहीं है, बस खाते हैं और निगल जाते हैं. और पूरा साफ करने के बाद वो जब एक जगह पर बैठ जाते हैं तो शांति से वो अपने पेट से वापस मुंह में ला करके उसे अब वो मीन्स मैं आपको बताऊँ पहले कि वो खाकर क्या करते हैं. जब वो उन्हें खाने के लिए घास मिल रही है वो फटाफट उसे खाकर निगल लेते हैं. निगलने के बाद वो कहाँ जाएगी? रूमेन में जाएगी. रूमेन में जाएगी तो क्या होगा? उसमें बैक्टीरियाज होते हैं. बैक्टीरियाज में वो पार्शियली थोड़ा सा चबाकर मतलब पार्शियली डाइजेस्ट होगा और रूमेन में चला जाएगा. और जब वो कहीं एक पूरा खाने के बाद जब वो एक जगह बैठेगी तो रूमेन में से वापस मुंह में निकाल कर उसे धीरे धीरे चबा कर देन like the human digestive system it enters into the stomach, then small intestine, large intestine, rectum and anus. Then the same procedure is there for the ruminants also. Only a difference is that कि ruminants में rumen एक अलग सा organ होता है जिसमें पहले वो घास को निगलते हैं. निगलने के बाद वो रूमेन में जाएगा. रूमेन में बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें मिक्स होगा, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा. सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के बाद वो अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन करेगा. एंड देन लाइक द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द फंक्शन इज द सेम. सो इन दिस वे दिस इज अबाउट द एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड द ह्यूमन. नाउ दीज आर द लार्जर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. Now let us study about some unicellular organism. Now how does the digestion takes place in unicellular organism? ये तो हो गई बात हमारी animals, those who are having the particular digestive system. But what about the animals, those who are having a only single cell, that is amoeba. Now amoeba, you know, amoeba is a unicellular organism. This is the nucleus, this is the food vacuole, this is the food vacuole, this is the nucleus and this is the cytoplasm in the body of the amoeba. So now this is a unicellular organism in which all the function, respiration, digestion, reproduction, excretion, all the functions are performed by a single cell. सारे फंक्शन एक ही सेल सारे फंक्शंस करते हैं. तो ये क्या होता है? When this food, when this captures, it has no specific hands or legs. They have the false feet. And this false feet is called as a pseudopodia. This false feet is called as a pseudopodia. This pseudopodia helps in the movement. ये उनके false feet यानी झूठे पाँव होते हैं. मतलब actually it is not a legs but only performing the function of the legs. legs का काम कर रहे हैं, हिलाने में उसे मदद करता है. जब भी वो उसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है तो वो हिला करके आगे बढ़ते हैं. इट कैन चेंज इट्स पोजिशन. वो उसका पोजिशन, अपना साइज एंड शेप चेंज कर सकता है. अगर यहाँ पर उसे फूड पार्टिकल कुछ नज़र आया, अगर यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल नज़र आया तो ये क्या कर लिखता है? अपने सूडोपोडिया को ऐसे
इसके आसपास इस तरह से वो अपने सुडोपोडिया को इसके आसपास घुमा लेता है और उसे अपने अंदर बॉडी में समा लेता है और फिर ये फूड वैक्यूल की मदद से उस फूड को वो ट्रैप कर लेता है, मतलब उसे पकड़ लेता है और फूड वैक्यूल फिर उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो जाएगा, उसको पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद खाकर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसका यूज़ कर लेते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो फूड वैक्यूल से ही बाहर फेंका जाएगा। सो दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हेल्प्स इन इट टेक्स द हेल्प ऑफ इट्स सुडोपोडिया। वो अपने सुडोपोडिया की मदद से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के बाद, मतलब उसके खाने को पकड़ने के बाद, सुडोपोडिया अपना उसका एक यूनिक इट इज़ इट्स यूनिक कैरेक्टर कि इट कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। जहाँ पर उसे फूड पार्टिकल दिखाई दे वो वहाँ पर जाकर उसका शेप चेंज करके उसे एंगल्फ कर सकता है। सो दिस इज़ the way in which the digestion takes place in unicellular organism, and we have studied about the multicellular organism, that is the human being as well as grass eating animals. So in this the three topics we have covered, so I think you might be able to understand what is the nutrition in animals. Thank you.